now we shall be discussing systematic sampling. As you can look into that the random is missing. This has been done deliberately as there are two groups. Some scholars do consider that systematic sampling is a type of a random sampling technique, that is probability sampling techniques. But few other educationists and psychologists or scholars, you can say, do consider this sampling technique as the non-probability sampling technique. But we shall be discussing this systematic sampling as systematic random sampling, but in the process we shall discuss why it is being called as non-probability sampling. So we shall discuss systematic sampling as non-probability sampling and also as probability sampling. As we usually do, firstly we outline the lecture and firstly we shall try to know the scope of the lecture and shall outline the lecture. So let us outline the lecture. So you can see that we are discussing systematic sampling. Rather we can say that at this juncture we are discussing systematic random sampling. So what is the meaning of systematic random sampling? We have discussed. And merits of systematic sampling and limitations of systematic sampling. So this is the scope of the present lecture. Now we shall start the lecture from beginning. So let us start. If we talk of the basic concept lies in systematic sampling, whether it is non-probability or probability, is to select every kth term. Kth may be 10th, kth may be 15th. So there is a table, and on the table you randomly select any particular number, you can say. It may be numbered, the name and elements, you can say. Then horizontally, vertically or in any direction we count and select the kth. मतलब यदि 10वां टर्म सेलेक्ट किया और डिसाइड किया कि सारे 10वें टर्म को सेलेक्ट करेंगे तो 10वां, 20वां, 30वां और इस तरह से हम सेलेक्ट करते चले जाते हैं. सो ये चीज इसमें ध्यान रखना है. यू हैव टू सेलेक्ट एवरी kth एलिमेंट. दिस इज द बेसिक ऑफ this sampling technique. A variation of the random process of sampling is the systematic sampling. A variation of the random process of sampling is the systematic sampling. In systematic sampling, members from a larger population are selected according to a random starting point, but with a fixed periodical intervals. जैसा कि हमने आपको बताया कि 10वां ले लिए, हम 10वें की जगह 15वां ले सकते हैं. जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रैंडमली लेना है, और इसीलिए इसको लोग रैंडम नहीं मानते हैं, क्योंकि रैंडमनेस सिर्फ फॉलो इसी जंक्चर पे होता है कि एक तो ले लिया, कहीं से एक ले लिया, रैंडम ये ले लिया. अब इसके बाद डिसाइड करना है कि एवरी kth, अब ये 10वां हो सकता है, 15वां हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स वी शैल डिस्कस लेटर. सो इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेंबर्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका रैंडम है और उस स्टार्टिंग पॉइंट का रैंडम होना अनिवार्य है. बाकी सब सारा 10वां, और इसीलिए इसके रीजंस है कि ये प्रोबेबिलिटी भी है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी है. सो selected according to a random starting point with a fixed
periodic interval. लेकिन इसके बाद every kth लेना है. Kth may be any number. That depends on the population demand and the size of the population you can see. सैंपल में कितने लोगों को लेना है और पॉपुलेशन का साइज कितना है, कैसे आगे हम लोग उसको स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली, अर्थमेटिकली समझ जाएंगे. दिस इंटरवल इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग इंटरवल. मतलब इस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है सैम्पलिंग इंटरवल. मतलब हमको सैम्पलिंग इंटरवल निकालना पड़ेगा इस सैम्पलिंग टेक्निक. कैसे निकालना है ये भी हम लोग सीखेंगे. So this interval is called a sampling interval, which is calculated by dividing the population size by desired sample size. और कैसे निकालेंगे ये आपने देखा, which is calculated by dividing the population size. population में कितने लोग हैं और उसमें कितने लोग, desired sample size कितना है डिसाइड करके, वो नंबर भी हम एक रख के आगे करेंगे. लेकिन एक चीज में हम आपको बता दें, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. कहीं पूछ सकता है आपसे कि सैम्पलिंग इंटरवल किस सैम्पलिंग टेक्निक में आवश्यक है या जुड़ा हुआ है, लाइक दैट. द सैम्पलिंग स्टार्ट्स बाय सेलेक्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एट रैंडम एंड देन एवरी kth एलिमेंट इन द फ्रेम इज सेलेक्टेड. ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं अभी. In systematic sampling, selection of the required number of elements of the population is made to include in the sample. क्या कह रहा है? In systematic sampling, selection of required number of elements. कितना चाहिए population में? Sorry, sample में. population में से sample कितना चाहिए? उसकी तरफ इशारा कर रहा है. Systematic sampling provides a more even spread of the sample over the population list and leads to greater precision. इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मेंबर उसमें प्लेस किए होने चाहिए. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग फ्रेम का आप लोग समझ रहे हैं, वो पूरा जो बना हुआ है. अब ये एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं कि kth टर्म को लेना है तो k इज इक्वल टू n बाई n. ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए, और उसका हम अभी इसको एक एग्जांपल लेके और भी क्लियरली समझ लेंगे. जहां सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इंटरवल क्या है, k. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इंटरवल यहां भी देखा, और n क्या है, पॉपुलेशन का साइज. 10,000 में से लेना है तो 10,000 होगा, यदि 1 लाख से लेना है तो 1 लाख होगा. और n सैंपल साइज कितना लेना है, 500 लेना है, 1000 लेना है. मतलब यह कि कौन सा टर्म लेना ठीक होगा, इसको निकालने का एक फॉर्मूला क्या है कि पॉपुलेशन का जो साइज है, इट मे बी एनी नंबर, मान लीजिए कि 10,000, तो और आपको कितना n लेना कितना है, 500. तो 10,000 डिवाइडेड बाई 500, जो भी नंबर आएगा वो मतलब एक इनिशियल जो एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हर, जैसे आगे हम लोग और भी देख लें, इसको एग्जांपल हमने लिया भी एक मैथमेटिकली. दिस सैम्पलिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स फ्रॉम स्टेप्स एज. मतलब इस सैम्पलिंग टेक्निक्स के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हमको लेना है, पहला क्या काम क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है. तो पहला स्टेप इसका है टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन सम ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, हाउस वाइज नंबर, मेरिट वाइज और एनी अदर फैक्टर वाइज. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि नंबरिंग कैसे करेंगे. तो ये कह रहा है कि पहला काम यह है कि पूरे पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको किसी एक ऑर्डर में रख देंगे. दूसरा, टू डिटरमाइन द डिजायर्ड नंबर ऑफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. और ये फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कैमा टर्म लेना है, इसका यही फॉर्मूला है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपसे पूछ सकता है जीके के ये क्वेश्चन में, नेट वगैरह में भी,
कि किसने ये फॉर्मूला जरूरी है, किस सैंपलिंग टेक्निक से संबंधित है। सो टू डिटरमाइन द डिजायर्ड नंबर और सैंपलिंग फ्रैक्शन टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 100 एंड ये डिसाइड करने के बाद तीसरा है टू सेलेक्ट एवरी 10th और kth एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इफ द रैंडमली चूजन नंबर इज 4, एक एग्जाम्पल हमने कहा भी था, उस वैसे भी कर सकते हैं आप। 10,000 को 500 के दे चाहिए तो उसे डिवाइड करके कि कितने नंबर है आप सबको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया। इफ द रैंडमली चूजन नंबर इज 4th फ्रॉम 1 to 10, मतलब आप सारा नंबर को आपने डाल दिया है, उसमें से 1 से 10 के बीच में एक नंबर आपने चौथा चूज कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप, फ्रॉम 1 to 10 द नंबर विल बी एज एवरी 10th नंबर हम लेंगे, पहला नंबर हमने चौथा चूज कर लिया और टोटल नंबर कितने हैं हमने वहां देखा था, हमारा 1000 ही नंबर है जिसको हम शामिल कर रहे हैं। थोड़ा छोटा कर दिया समझने के लिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, चौथा, 14वां, 24वां, और इस तरह से आप सबको सेलेक्ट करते रहिए और लास्ट का जो नंबर होगा वो आपका 994। मतलब हमको लेना कितना है, 1000 में से कितना लेना है, 100। तो अब यदि आप काउंट करेंगे 4 से शुरू करके 994 तक यदि आप पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा, 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन वो हिसाब आपको लगाना पड़ेगा और हिसाब लगाने में ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। एज द एलिमेंट्स आर चूजन फ्रॉम रेगुलर इंटरवल, दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज सैंपलिंग बाय रेगुलर इंटरवल। एक तो ये है, वहां भी हमने बताया था, यहां भी आपको जीके नेट वगैरह के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हिच सैंपलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज सैंपलिंग बाय रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल वैसे आप यदि कंसेप्ट समझ गए हैं तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज सैंपलिंग बाय रेगुलर इंटरवल, सैंपलिंग बाय फिक्स्ड इंटरवल और सैंपलिंग बाय एवरी kth यूनिट। सब सेम है, लेकिन ये पूछ देगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सैंपलिंग बाय रेगुलर इंटरवल, सैंपलिंग बाय फिक्स्ड इंटरवल और सैंपलिंग बाय एवरी kth यूनिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द बेसिक। और इस सैंपलिंग टेक्निक को कुछ लोग जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मानते हैं वो कहते हैं कि इसमें तो कोई मतलब इसमें तो रैंडमनेस का कोई कंसेप्ट है नहीं, आपको हर हाल में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एवरी 10th लेना है या फिर इसका जो नियम है उसी में एवरी kth लेना है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सैंपलिंग टेक्निक है, ये आपका रैंडम टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, ये रीजंस लोग देते हैं। अब उसके फॉर एंड अगेंस्ट हैं, उस पर आप विचार करेंगे, लेकिन एक इसके पक्ष में बात जाती है कि पहला जो नंबर हम जो स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली करते हैं। सो लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इट नीड्स लेस लेबर सो इज मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि एक बार डिसाइड कर लिए फॉर्मूला कि k का वैल्यू क्या है, देन यू हैव टू डू नथिंग। दिस इज सिंपल इन नेचर एंड दस रिड्यूसेज एरर। ऑब्वियस है कि जो सिंपल है उसमें एरर गलती होने की संभावना कम है। जो बहुत एक्सपर्ट रिसर्चर नहीं है वो भी सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सैंपलिंग कर सकता है। इट टेक्स लेस टाइम इन कंपेरिजन टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब चूंकि उसमें सारे लोगों को रखना है, इसमें तो kth डिसाइड करके और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इट इज लेस एक्सपेंसिव दैन सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हमने कहा भी कि ये एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग सब रिलेटिव है। सो इट इज लेस एक्सपेंसिव देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सारे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। इट नीड्स सिंपल कैलकुलेशन। वही kth इज इक्वल टू कैपिटल N बाई N, मतलब पॉपुलेशन को सैंपल क्या आपको चाहिए उससे डिवाइड करके kth टर्म निकाल लीजिए और एवरी kth को सिलेक्ट कर लीजिए।
it is spread more evenly over the population and so becomes more precise than stratified random sampling. अभी हम लोग stratified को भी समझेंगे, तो उसकी तुलना में कह रहा है कि more precise है. It is more useful for some situations. It is more useful for some situations to find the average telephone bill. Every kth individual using telephone may be selected. मतलब इस तरह का कोई आपको सर्वे करना है कि टू फाइंड द एवरेज टेलीफोन बिल कितना आ रहा है, तो kth को सेलेक्ट कर लीजिए. 10वां घर ले लिए हैं, 20वां घर ले लीजिए, 30वां घर ले लीजिए और फिर निकाल लीजिए कि टेलीफोन बिल क्या है, एवरेज टेलीफोन बिल क्या है. इसकी तरफ से आ गया. देयर मे बी अदर एग्जांपल्स. सो फार एज द लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज कंसर्न, इसमें वो बातें भी आएगी कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी ही है. ओनली फर्स्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड रैंडमली, रेस्ट आर लिंक्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट. दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल रैंडम मेथड वेयर एवरी सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. यहां मतलब पहला तो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करते हैं, बाकी चूंकि केयरफुली सेलेक्ट करना है, ये इसके नियम में शामिल है, तो सारा यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, जो मेरिट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का. तो इस दृष्टि से सिंपल रैंडम सैंपलिंग की तुलना में इंफीरियर है, या इसका ये लिमिटेशंस है. When the list of element has a periodic arrangement, there is a risk that the sample interval may coincide with the periodic interval in the list. मान लीजिए कि किसी चीज को कोई सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जो इस ढंग से अरेंज है कि ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स का एलिमेंट आता है हर 10वें के बाद, और संयोग से पहला टर्म हम ऐसा सेलेक्ट कर दिए कि उसमें रिपीट होने के चांसेस हो गए, तो ऑब्वियस है कि इसका जो होमोजिनिटी है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगी. ये दूसरी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए ज़्यादा सटीक होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए सटीक नहीं होगा. द पेरियोडिक इफेक्ट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ द लिस्टेड पॉपुलेशन अनड्यूली इंक्रीजेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द सैंपल्स. उसी तरफ इशारा कर रहा है. तो ऑब्वियस है कि वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब हेट्रोजिनिटी बढ़ जाएगी. So this is all about this systematic sampling technique, which we discussed as probability sampling technique, but so many scholars do consider this sampling technique as non-probability sampling technique. So we can categorize this particular sampling technique under non-probability sampling technique and probability sampling technique. The basic does not change, so you can consider it in this category or that, but in non-probability category we shall not discuss it separately because the concept does not change. Whether you explain this systematic sampling as a non-probability sampling technique and a probability sampling, the basic is the same. And what is basic? The kth term, the interval, the selection of interval. Thank you very much.